اس کو ایک نئی شکل دی گئی ہے کہ عمران خان یا تحریک انصاف اور پاکستان کی سلامتی، تحریک انصاف یا عمران خان پاکستان کی سلامتی کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو جب ایسی صورتحال ہو تو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، پھر کام بھی اسی کا ہوتا ہے، فیصلے بھی اسی کے مانے جاتے ہیں. ہم کان دائیں ہاتھ سے پکڑیں یا بائیں ہاتھ سے پکڑیں، ادھر کی بات کریں یا ادھر کی بات کریں، پورے پاکستان کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہم نے کہا شیخ مجیب الرحمان اور قومی سلامتی ساتھ نہیں چل سکتے. پھر ہم شیخ مجیب الرحمان کو ایسے ٹکانے لگایا کہ قومی سلامتی بھی ساتھ ہی اس کی نظر ہو گئی. پھر ہم نے نعرہ لگایا کہ بھٹو اور قومی سلامتی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پھر کہا قومی سلامتی ولی خان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اس سے پہلے کہا قومی سلامتی اور مولانا مودودی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پھر کہا قومی سلامتی اور ایوب خان ساتھ نہیں چل سکتے. وہ قومی سلامتی اور محترمہ فاطمہ جناح ساتھ نہیں چل سکتے. قومی سلامتی اور جناب نواز شریف ساتھ نہیں چل سکتے. قومی سلامتی اور آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو ساتھ نہیں چل سکتے. یہ قومی سلامتی کا اس طرح کے نعرے لگا کر ہم نے جو حلیہ بگاڑا ہے، جو اس کو داغ تار کیا ہے اور جو داغ کیا ہے، اس کو ہم کب تک جو ہے اس کو دہراتے رہیں گے اور دنیا میں تماشا بنے رہیں گے کہ جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، جس کے ساتھ کروڑوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ غدار ہو جاتا ہے، اسے قومی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے. یہ ہم نے کیسا ملک کیا ہے ہمارا کہ یہاں جو ہے میجورٹی جو ہے وہ اس سے خطرہ ہوتا ہے ملک کو. تو تماشا یہ ختم ہونا چاہیے. ہمیں آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. ہمیں اور آئین جو ہے وہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے، یہ حق دیتا ہے، اس کا فرض قرار دیتا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی تشریح کرے، فیصلہ کرے اور ہر ادارہ اس کے فیصلے کا پابند ہے. یہ کیا ہوئی بات؟ اور کس میں ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے؟ کیسے نہیں مانیں گے؟ اگر ریاست جو ہے باقی رکھنی ہے کہ نہیں، اگر ریاست کو تار کرنا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، آپ دیکھیں آپ کی پشتون پٹی میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے جذبات ابھر رہے ہیں. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ سندھ میں انٹیریئر میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کیا آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لی ہیں. ہم نہ سننے کو تیار ہیں، نہ سمجھنے کو تیار ہیں. کوئی تو ہمیں کوئی سمجھائے، کوئی خدا کا خوف دلائے، کوئی ہمیں شرم دلائے، اپنے ماضی سے اور اپنے مستقبل کا احساس دلائے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم چپ کر کے کھڑے رہیں اور ہم کہیں ہم تماشائی ہیں؟ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کی حفاظت کریں گے، اس کے دستور کی حفاظت کریں گے. السلام علیکم، میں جمیل فاروقی ہوں. آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرت سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے. اور تمام درود پاک نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے. بڑے صحافی نے، سینئر صحافی نے منع کی اخیر چترول کر کے رکھ دی ہے. وہ جو ہر وقت ایک خاص قسم کا ایجنڈا، پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے میڈیا کے اوپر بطور تجزیہ کار براجمان رہتے ہیں، ان صاحب نے جب اپنا ویو پوائنٹ دیا ایک ٹیلی ویژن شو کے اوپر، تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے جو ہسٹری کی تفصیل نکال کے ان کو آئینہ دکھایا ہے، کمینڈیبل. میں وہ ڈیٹیلڈ ویڈیو شروع میں آپ کو دکھا چکا ہوں، آپ نے ملاحظہ کر لی ہوگی. اب اندازہ کیجئے کہ آپ جمہوری یا ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر ڈیموکریٹک نارمز کا خیال رکھتے ہیں. آپ یہ خیال رکھتے ہیں کہ آپ جرنلسٹک اپروچ کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے احساسات اور ان کے معاملات کا بھی ادراک رکھیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں، ایک سرٹن ویو پوائنٹ کو ریفلیکٹ کریں اور اس کے بعد پھر خاموشی سے آپ کہیں کہ پبلک آپ کو کہے بھی کچھ نہ، تو انتہائی افسوسناک ہے. یہیں پہ فرق آ جاتا ہے جرنلسٹ اور اوپینین میکر میں. اوپینین میکر ہوا کی مجدار کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے، جبکہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ عوام کا خیال رکھتے ہوئے اور خاص طور کے اوپر ریالٹی کا، مظلوم کا خیال رکھتے ہوئے سچ بولتا ہے اور سچ بولتے ہوئے نظر آتا ہے. یا منیب فاروق صاحب نے کیا بولا اور اس کے اوپر مجیب الرحمان شامی صاحب نے کیا بولا، اس کی ڈیٹیلز جو تھی وہ شروع میں نے آپ کو دکھا دی. اس کے علاوہ سوشل میڈیا اس کے اوپر کیسے ریاکٹ کر رہا ہے، صحافی حضرات کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے. پاکستان میں ایک اور سوشل میڈیا ایپ بند ہونے کی اطلاعات ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کچھ وائرل بیانات اور بولتی تصویریں. اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے. ایک اور گزارش ہے، اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن یعنی گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیجیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا، ویل اینڈ گڈ، نہیں کیا کر لیجئے. آل ویڈیوز کا چیک مارک آن کر دیجیے گا. کامنٹس زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں تاکہ فائر وال کا مبینہ جشو ہے بریک ہو سکے، آپ ہمارے درمیان جو انفارمیشن فلو ہے وہ انٹیکٹ رہے. میں نے ایک واٹس ایپ چینل کریٹ کر دیا ہے
लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 3,50,000 में से 1.5-2 लाख भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वीडियो वहां पर पोस्ट कर दी जाएगी उस चैनल में, व्हाट्सएप चैनल में, और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपको पता है कि वो हमेशा, उनका अपना एक मतमा नज़र है, उनके ओपिनियन से इख्तलाफ हो सकता है। वो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ जरदारी साहब और इस तमाम टोले की जो गुज़िश्ता 40 साल से पाकिस्तान के ऊपर विराजमान है, उनकी हिमायत करते हुए दिखाई देते हैं। ये हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, हमारे सीनियर हैं, उस्तादों में से, तो उनकी अपनी चॉइस है, जाहिर है कि वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं उसके ऊपर बात करना। लेकिन अब उनकी भी लगता है कि बस हो गई है। और एक टीवी शो के अंदर जब मुनीब फारूक ने एक कमेंट किया कि जिसके पास डंडा है फिर वो ज़्यादा बेहतर डिसाइड कर सकता है, और अदालतें मखसूस नशिस्तों के केस के मामले के ऊपर जो वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है, उसको तो दे चुकी हैं, लेकिन हो सकता है कि हुकूमत और फिर वो तमाम जिनके हाथ में डंडा है वो इसको ना माने। ये मुनीब फारूक साहब के कमेंट थे, जिसके ऊपर मुजीबुर रहमान शामी साहब ने वो जो आपके सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, और फिर भुट्टो, और फिर जरदारी, बेनज़ीर, और फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उन सब से लेते हुए अब इमरान खान तक को की हिस्ट्री सुनाते हुए कहा है कि हम कोई पागल हो गए हैं कि हम मुंह मोड़ के बैठे रहे, हम आइन की खिलाफ वर्जी होते हुए देखते रहें। और कौन होता है जो अदालतों के फैसले को नहीं मानेगा? कौन नहीं मानेगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पांव तले रगड़ता रहेगा और हम देखते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर उस क्लैन के लोग भी, उस तरफ की सोच रखने वाले या इख्तलाफ राय रखने वाले लोग भी अब बस हो जाने के ऊपर मजबूर हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में फिर ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हालात किस रुख पलटा खा रहे हैं, और ये भी सोच लेना चाहिए कि वो जो छोटे छोटे माउथ पीस बने हुए हैं ना, उनको भी अपना मुस्तकबिल देख लेना चाहिए कि आपके साथ पब्लिक ने क्या करना है। इसके ऊपर मुताद्दिद सहाफ़ियान कराम और फिर सियासतदानों ने कमेंट्स किए हैं। ये शाहज़ेब खानज़ादा साहब का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू हुई मुजीबुर रहमान शामी और मुनीब फारूक की, तो उसके ऊपर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब कमेंट करते हैं। वो कहते हैं, जब मुजीबुर रहमान शामी भी वक्त के यजीद के खिलाफ उठ खड़े हों तो समझ लो कि ये कंपनी नहीं चलेगी। ये मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया। इमरान रियाज खान इसके ऊपर ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं, कौमी सलामती बामुकाबला कौमी लीडर्स, कौमी सलामती बामुकाबला कौमी लीडर्स, ये इमरान रियाज खान का ट्वीट है। खावर घुम्मन साहब ट्वीट इसके ऊपर करते हैं कि सहाफती तज्जिया बामुकाबला डैश डैश डैश, आप इस खाली जगह को कैसे पुर कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कमेंट्स के नीचे छोड़ दिया मामला। अच्छा, मामलात मुल्क के इस नहज तक पहुंच गए हैं कि अब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है लोगों की। वो लोग जो अपनी डिग्रियां वेरीफाई कराना चाहते हैं क्योंकि वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं। इसके ऊपर साबिर शाकिर साहब ट्वीट करते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं, दफ्तर खारजा इस्लामाबाद के बाहर ऐसे मनाजर तशवीशनाक हैं। ये पाकिस्तानी नौजवान अपनी डिग्रियों की तस्दीक के लिए आए हैं। गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे के मुताबिक 5 माह में ब्रेन ड्रेन में 48% इजाफा हुआ है, 48% पिछले 5 महीने में। ज़्यादातर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT माहिरीन मुल्क से जा रहे हैं। अब इन हालात के अंदर हमारी जो सिचुएशन बन गई है उसमें हम क्या कर सकते हैं, और हमने फिर डिजिटल मीडिया के साथ क्या कर दिया, हमने अपने इंटरनेट के साथ क्या किया है। आने वाला दौर डिजिटल अर्निंग्स का दौर है, और ये वाला दौर भी डिजिटल अर्निंग का दौर है, आने वाला तो इससे ज़्यादा है। उस दौर के अंदर हम क्या कर रहे हैं। अभी मैं वकार मलिक का एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, एक्स के बाद अब पाकिस्तान में फेसबुक भी ब्लॉक कर दिया गया है। मैंने अभी तक फेसबुक विजिट नहीं किया, लेकिन ये एक क्रेडिबल सोर्स है, यकीनन इनके नॉलेज में कोई चीज़ ऐसी होगी तो वो इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। अब हालात जब मुल्क में इस तरह से क्रिएट हो जाएं तो फिर नौजवान क्या सोचेगा, इवन आपकी जो सेटल्ड फैमिलीज हैं वो क्या सोचेंगी। मैं आपको टैक्स पेयर की बात बता रहा हूं, सैलरीड पर्सन का कभी ऑडिट नहीं होता टैक्स में, FBR में। मेरे दोस्त रोते हुए मेरे पास आए हैं कि भाई इन्होंने हमारा मतलब सारी चीजें खोल के रख दी हैं, ये करें ये करें ये करें। हम एक तो टैक्स पे कर रहे हैं, हर माह तनख्वाह से कटवा रहे हैं, अगर सेविंग अकाउंट है उसमें भी प्रॉफिट आता है उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर टैक्स दे रहे हैं, और फिर हम इनको प्रूफ्स भी दें ऑडिट के तौर के ऊपर। ये प्रूफ्स तो बाद में जो करेंगे क्या है इनका खांचे का तरीका है। नीचे का कोई बंदा जो होगा वो 10-15 हज़ार लेगा और छोड़ देगा। इस तरह ब्यूरोक्रेसी के भी मजे लगे हुए हैं। जो टैक्स दे रहे हैं उनको भी आप लोग पकड़ रहे हैं, तो आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना पैसा निकालें अकाउंट से, मुल्क छोड़कर चले जाएं, या फिर वो
बेनामी जायदादें खरीद लें ताकि आप फिर पकड़ते रहो, फिर सारी जिंदगी इन्वेस्टिगेट करते रहो। तो ये जुल्म है, मेरे ख्याल में उस तबके के साथ जुल्म है जो इस मुल्क को चला रहा है, उनके साथ जुल्म है। अफसोसनाक है। अगली खबर मैं शामिल करता हूं, ये मुराद अली शाह साहब का एक स्टेटमेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुराद अली शाह साहब कहते हैं, वजीर आला सिंध, वो कहते हैं पीटीआई के मामले पर हमसे मुशावरत नहीं हुई, किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है सैयद मुराद अली शाह। तो अब मुझे इसके ऊपर कमेंट जरूर करना है। आपको याद होगा जिस वक्त हद तक इज्जत कानून पंजाब असेंबली में पेश किया गया था, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की थी और हद दर्जा मुखालफत की गई थी। लेकिन जब पास हुआ तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि गोगनियां दी मिट्टी लाना, वो वाली चीज, गुंगलुआं दी मिट्टी लाना, वो वाली चीज तो हो रही थी, लेकिन वो हो गया, पास भी हो गया, खामोशी सब कुछ हुई, तो अदालतें बीच में आई, वरना अदरवाइज तो चीजें हो गई थी। हामिद मीर साहब का एक स्टेटमेंट है, वो भी मैं शामिल करता हूं। वो कहते हैं इमरान खान ने 3 बार डील को मुस्तरद करते हुए कहा अगर बात होगी तो सिर्फ मेरी शराइत पर होगी। मैंने आपको ये बात 4 दिन पहले बता दी थी। ये बात 4 दिन पहले मैंने आपको बताई है कि 3 नहीं बल्कि 4 मरतबा डील की ऑफर हुई है इमरान खान को और उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। बोलती तस्वीरें के साथ शामिल करते हैं, ये सनम जावेद खान है, ये इस वक्त पीटीआई की नॉमिनेटेड सेनेटर हैं। मखसूस नशिस्तें अगर मिल जाती हैं तो हो सकता है कि इनका भी काम हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये पिछले 1.5 साल से फस्तायत को बर्दाश्त कर रही हैं। अब वो अपने ख़ानदान से मिली हैं, फैमिली से मिली हैं, इस वक्त केपी हाउस इस्लामाबाद के अंदर हैं। इनके लिए अगर आप कोई एक लफ्ज़ बोलना चाहें, व्हाट अ लेडी शी इज़, आयरन लेडी। और इसके साथ साथ बाकी जो पाबंद सलासल ख्वातीन हैं उनके लिए भी मेरी ये ख्वाहिश है कि उनके लिए भी दुआ हो। देखें, मर्द हजरात तो इस सारी जंग के अंदर जो भुगतान भुगत रहे हैं वो तो भुगत रहे हैं, लेकिन ख्वातीन के मामले में थोड़ा सा मेरे ख्याल में नरमी का मामला होना चाहिए था। अच्छा, अब हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट कैसे कर लेते हो यार, इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं अभी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला नहीं हुआ, इस मामले पर इत्तहादियों से मुशावरत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुशावरत किए बगैर एक शुरली छोड़ दी गई है और उसका नतायज जब आपके सामने आने लगे तो आप ये कहना शुरू हो गए। तो मैं तो बस इतना कहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं जी। जावेद लतीफ़ साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, ये साहब थे जिन्होंने टेलीविज़न पर बोला था कि अगर नवाज शरीफ नहीं होगा तो पाकिस्तान टूट भी सकता है। ये इन्होंने बोला था, मुझे अच्छी तरह वर्ड टू वर्ड। उसके बाद इन्होंने माजरत भी की थी उसके ऊपर। ये लेक्चर दे रहे हैं कि कौमी जमातें क्या होती हैं। मैं तो बस इतना कहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। अच्छा जी, आगे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट कॉमेंट। वो कहते हैं मेरे हल्के में DHAs हैं, 9 मई का बयानिया DHAs में लोगों ने कबूल नहीं किया। आपके अपने लोगों ने 9 मई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोलते हैं हर पोलिंग स्टेशन से तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत से जीती है। आगे चलते हैं जी। इसहाक डार साहब का बयान है, वो कहते हैं महंगाई ये हुकूमत नहीं लाई। भाईजान, महंगाई ये हुकूमत नहीं लाई तो क्या महंगाई जस्टिन ट्रूडो लाया है? क्या महंगाई नरेंद्र मोदी लाया है? क्या महंगाई हसीना वाजिद लाई है? क्या महंगाई सुहेल शाहीन लाया है अफगानिस्तान वाला? क्या महंगाई जो बाइडन लाया है? तो बस फिर बस कर दो भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं जी। सना बुच्चा, वैसे मैं इनके सहाफ़ती मामलात से थोड़ा डिसएग्री करता हूं, लेकिन ये वाला ट्वीट मुझे इनका पसंद आया। वो कहती हैं मेरी थ्योरी ये है कि हुकूमत ने जानबूझकर, कहती हैं मेरी थ्योरी ये है कि हुकूमत ने जानबूझकर अता तारड़ साहब के मुंह से ये बात करवाई ताकि अगर ज्यादा लान तान हुई तो पार्टी क़यादत आराम से कह देगी कि बच्चा है ना जज्बाती हो गया था। बात उन्होंने बिल्कुल पते की है। मैं तो बस इतना कहूंगा, फिर कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे जी। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं, गौर हजरात तवज्जो, गौर थी हजरात तवज्जो, तौहीन भाई बड़ी शख्सियत है। तौहीन वहां पर होती है जहां पर किसी की इज्जत व आबरू हो। अगर किसी इदारे ने अपनी इज्जत व आबरू ही ना संभाली हो तो वहां तौहीन कैसी? ये तौहीन अदालत के मामले के ऊपर शायद कमेंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अदालतों के उसके ऊपर वाकईतन तौहीन अदालत का नोटिस ले लेना चाहिए। मतलब यार इतनी इस हद तक यार, मतलब अपने मामले के ऊपर तो आपके हक में फैसला है तो आप गुड्डी मुबारक हो, आइन के मुताबिक फैसला आया है, याद है किसी को? कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। ख़वातीन हज़रात, मेरा आज मूड तो वैसे एक व्लॉग करने का था, 10 मुहर्रम हराम है, लेकिन मैंने 2 कर दिया क्योंकि खबर इतनी बड़ी आ गई थी, मामला इतना बड़ा था। आपसे गुजारिश है कि आपने दुआ में याद रखना है और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।